Assalamu alaikum. We welcome you on our YouTube channel, JK Toppers Academy. Alhamdulillah, hope uh, that you are doing well and you are feeling quite awesome. Alhamdulillah. So let me today discuss and demonstrate about the most important topic uh, for those learners uh, who are in their initial stage of learning, जो आज इब्तिदा में शुरू में से ही जो पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर के बारे में, नाउन के बारे में, खुसूसन पार्ट ऑफ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच. वन ऑफ द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द स्पीच इज नाउन, एंड लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट नाउन इज. एंड just let us start here. What noun is? Firstly, today's topic is entitled as noun. आज का जो टॉपिक है वो इस उन्वान पर है, यानी कि इसम के बारे में. इसम, नाउन. उर्दू में इसको इसम कहलाते हैं, या मान लीजिए आप नाम और द नेमिंग वर्ड, simply naming words or naming word in singular sense, naming word. Yeah, a word. First you must learn. आपको ये जानकारी होनी चाहिए what word is first. Word is the combination of letters in proper arrangement. Combination of letters in proper arrangement. Proper arrangement. Having proper sense. Proper sense. We must know first what word is, because noun is a word or a naming word that refers a person, name of person, place or a thing. Noun denotes the name of a person, place or a thing. So, but noun is a word, and word in Urdu called as lafz. हमारे पास आपने पढ़ा भी होगा, उर्दू में यह कहा जाता है कि लफ्ज बेमाने भी होता है और बामाने भी होता है, मीनिंगफुल भी होता है और मीनिंगलेस भी होता है. जो मीनिंगफुल वर्ड होता है इसी को हम लफ्ज कहते हैं, और जो मीनिंगलेस होता है इसको उर्दू में हम मुहम्मिल, जो सेंसलेस और मीनिंगलेस होता है. जैसे कि इंग्लिश में, उर्दू में हम कहेंगे चाय के बदले चाय के बदले शाय, वाई, रोटी के बदले वोटी. ये उर्दू में ये कंसेप्ट है. सेम इज इन द इंग्लिश एज वेल. सो हम जब लफ्ज की बात करेंगे, जब हम नाउन की बात करेंगे, पहले वी मस्ट नो व्हाट वर्ड इज. सो वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. Combination of letters in proper arrangement, having proper sense. Let us suppose ABC cannot be called a word because it doesn't have any proper sense or proper combination, as it doesn't exist as a word. Yes, A exists singly as a word, as a letter as well as a word. As an alphabet, A means also a single person, a woman, a man, a teacher, etc. So A is called word. Let us suppose another example is CAT, cat. इससे पहले मैं कहूंगा ATC, at. It doesn't have proper arrangement. Instead of this cat, so cat is having proper arrangement as well as meaning. So the word must be meaningful as well as properly arranged. The letters must be properly arranged. So it is called word. So any naming word or a word, it is called also naming word. Noun is called as naming word. जो सजेस्ट करता है नेमिंग वर्ड दैट denotes, it suggests or denotes, it denotes or suggests the name of
or describes the name of a person, place or a thing. Place or a thing. Simply, हमने ये पहले से ही पढ़ा होगा, जो लर्नर्स बिगिनर्स हैं उनको भी चाहिए ये बात मेंशन करे, they must inculcate in their minds what this noun is. It was all about noun. Naming words are called as nouns. Simply, naming words are called as nouns. Called as. तो यहां तक आपको समझ तो आया। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा आपको, मिसाल देकर, कई मिसालें हैं इस बारे में। अगर पर्सन की पहली बात हमने की, दैट डिस्क्राइब्स और मेंशन्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। पहले जब हम पर्सन की जब बात करते हैं, किसी नेम ऑफ ए पर्सन की, नेम वायर इट suggests or describes or refers name of a person, so I will just cite an example, that is इकबाल। अगर प्लेस की बात करेंगे, प्लेस इज काजीगुंड, अनंतनाग, जम्मू। इकबाल, काजीगुंड is the name of place, person is इकबाल, प्लेस इज काजीगुंड, एंड पर्सन, प्लेस और ए थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट, थिंग, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, वेदर इनएनिमेट और एनिमेट, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, दैट इज ऑल्सो, लेट अस सपोज आई हैव दिस पेन और बुक, पेन, watch, etc. These are the objects or the things, persons, places or place or things. Let us suppose काजीगुंड, जम्मू, इकबाल या गुलाम हसन एटसेट्रा, राम रहीम एटसेट्रा। ये ना, these are name of the persons, name of the places, name of the things. So these are examples. Now we have, broadly speaking, that जैसे कि उर्दू में भी यह है कि मानू के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मानू के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। नाउन इज ऑफ टू काइंड्स अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग, अकॉर्डिंग टू that is proper noun and common noun. And we have, according to number and gender, we have two nouns, noun number, noun gender, singular and plural. Yeah, according to its meaning we have two kinds, that is proper noun, common noun. इसको हम, प्रॉपर नाउन को हम उर्दू में इसमें मारिफा या इसमें खास कहते हैं, इसमें खास या इसमें मारिफा कहते हैं, जो किसी प्रॉपर पर्सन को डिनोट करता है, मेंशन करता है, किसी प्रॉपर प्लेस को मेंशन करता है, किसी प्रॉपर चीज को मेंशन करता है। इसी तरह है कॉमन नाउन में, अगर हम इसको उर्दू में बताएंगे, इसको इसमें आम कहते हैं या इसको हम इसमें नकरा कहते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मायने के लिहाज से, मानवी लिहाज से, यानी कि अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग इट इज ऑफ टू काइंड्स, वन इज प्रॉपर नाउन, अनदर इज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को हम इसमें मारिफा या इसमें खास कहते हैं, और कॉमन नाउन को इसमें आम, इसमें नकरा कहते हैं। जैसे कि इसमें आम किसी शख्स को मैं कहूंगा, किसी आम जगह को मैं कहूंगा, किसी आम चीज के बारे में कहूंगा। अगर मैं कहूंगा प्रॉपर नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन की कई एग्जांपल्स हैं, लेट अस सपोज, प्रॉपर नाउन की कई एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर इकबाल, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, द ग्रेट फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी, पीटी नेहरू। दीज आर proper persons, proper nouns, example of proper
प्लेस की एग्जांपल मैं ताजमहल की बात करूंगा, इट इज इन आगरा, ताजमहल, सो इट इज प्रॉपर प्लेस। दीज आर प्रॉपर पर्सन्स। प्रॉपर प्लेस की जब बात करेंगे तो प्लेस ताजमहल है, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, हिस्टोरिकल लोकेशन है ये, हिस्टोरिकल प्लेस, मॉन्यूमेंट, कुतुब मीनार हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ये एक इमारत है, तारीखी इमारत। ताजमहल भी एक तारीखी इमारत है, आगरा में वाक़ा है, यूपी उत्तर प्रदेश के स्टेट में है। तो इस तरह से ये खास जगहें हैं। और प्लेस की बात की मैंने, प्लेसेस की बात की मैंने, और प्रॉपर पर्सन्स की बात की मैंने, यहाँ पर प्रॉपर पर्सन्स की बात हुई। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुतुब मीनार प्लेसेस की मैंने एग्जांपल दी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, और ताजमहल भी एक मॉन्यूमेंट है। शाहजहां हैज मेड फॉर हर वाइफ मुमताज महल दिस वेरी प्लेस। गो दीज आर प्रॉपर प्लेसेस एंड प्रॉपर थिंग। प्रॉपर थिंग किसी चीज की एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक किताब है गीता, महाभारता, महाभारता, रामायण एंड द होली कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, अदर रेविलेशंस, जबूर, इंजील, तौरा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बाइबल जिसको इंजील ही कहते हैं, जो पहली इंजील ही, इंजील मुकद्दस जो नाजिल हुई है ईसा अलैहिस्सलाम पर। तो ये यहाँ मैं कहूंगा जैसे कि संगमरमर से बना हुआ कोई जगह, जैसे जंतर मंतर है, एक प्लेस है दिल्ली में, या ये राजस्थान में भी है जंतर मंतर। छोड़िए इन जगहों की बात, छोड़िए। अब जो मैंने बात की है होली कुरान, गीता, महाभारता, या मैंने सजू की मारुति की बात कहते हूं, या हमारे पास होती है आजकल की गाड़ियां, जैसे BMW है, आल्टो 800 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर द प्रॉपर brand names. So these are also included in this proper things or objects. So it is all about proper and common noun. It is all about, firstly we discussed about proper common noun क्या होता है। तो आइए फिलहाल इसको रब करते हैं। अभी ये प्रॉपर नाउन की बात है, और कॉमन नाउन जैसे कि डॉक्टर इकबाल मैंने बताया था, आप इकबाल ही तस्वर कीजिए, या मैंने एक प्लेस का नाम दिया जस्ट लाइक काजीगुंड। काजीगुंड इज ए प्रॉपर प्लेस, बट हम मार्केट को कहेंगे या एक सिटी को कहेंगे। सिंपली अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट बन गया कॉमन नाउन। अगर मेन मार्केट अनंतनाग की बात करेंगे, मेन मार्केट काजीगुंड की बात करेंगे, तो यह हो गया प्रॉपर नाउन बच्चों। अब कई एग्जांपल्स में कॉमन नाउन को भी, कॉमन नाउन के भी दूंगा यहां पर। व्हाट कॉमन नाउन एग्जांपल्स, कॉमन नाउन एग्जांपल्स के साथ मैंने जब डॉक्टर इकबाल की बात की, महात्मा गांधी की बात की, अब मैं एग्जांपल में पर्सन की जब बात करूंगा तो सिंपली कोई इकबाल, कोई भी नाम का रशीद, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर हम, ये पर्सन की बात है, अगर प्लेस की बात करेंगे तो हम सिंपली काजीगुंड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मार्केट को। ये पता नहीं कौन सा मार्केट है, तो ये कोई आम भी मार्केट, कोई खास भी, मगर इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, इट इज नॉट ऑब्वियस, ये यहां पर वाजे नहीं है कि कौन सा मार्केट है। और जब हम काजीगुंड मार्केट कहेंगे या अनंतनाग मार्केट कहेंगे, जम्मू मार्केट कहेंगे, तब ये प्रॉपर बन गया है। तो ये कॉमन नाउन की कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम, या थिंग की बात करेंगे, किसी चीज की बात करेंगे हम, तो हम कहेंगे सिंपली पेन। अगर मैं कहूंगा फाउंटेन पेन, अगर मैं कहूंगा रिनॉल्ड पेन, तो एक बन गया प्रॉपर। अगर मैं कहूंगा बुक, तो एक बन गया कॉमन। अगर मैं सिंपली पेन कहूंगा, बुक कहूंगा, ये हो गए कॉमन नाउन्स। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एंशिएंट रिविलेशन है, जस्ट लाइक ऋग्वेद, अथर्ववेद, युजुर्वेद, सामवेद, जो वेदास है, हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदुइज्म में
अगर मैं वो बात करूंगा तो वो प्रॉपर बन गए हैं। अगर मैं आम सी बात करूंगा, कोई भी किताब या कोई भी नोटबुक, तो तब ये बन जाएंगे कॉमन नाउन्स की एग्जांपल्स। ये रही थी अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, माने के लिहाज से। अब हमारे पास ब्रॉडली स्पीकिंग दैट नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर, तेदाद के लिहाज से। नंबर होता है तेदाद, वी काउंट 1 2 3 4 5 6। इन अकॉर्डिंग टू नंबर वी हैव टू काइंड्स ऑफ नाउन्स, दैट इज नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड, इसको नाउन नंबर भी कहते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। इनको क्या कहते हैं हम? सिंगुलर वाहिद होता है, सिंगल पर्सन, और प्लूरल जमा होता है, सिंगुलर होता है वाहिद। Just like given, I will give you an example. These are called also as noun numbers. Noun numbers. इनको हम वाहिद और जमा भी कहते हैं, सिंगुलर। अकॉर्डिंग टू नंबर, नाउन इज ऑफ टू काइंड्स, दैट इज फर्स्ट एंड second, that is two kinds. One is singular noun as well, another is plural noun. One, what about singular? Let me tell an example that man, men, woman, woman। इसी तरह मैं कहूंगा टू, सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर सेंस में मैं कहूंगा शू, शूज आएगा, है ना। अगर मैं सिंगुलर सेंस में कहूंगा शू, तो प्लूरल में क्या बनेगा इसका? शूज। इसी तरह कई और एग्जांपल्स हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, काफ, फॉल्ट की वजह से आई कांट रब or either write anything else, so let me call the mechanic। Sorry for inconvenience, I regret for any inconvenience, have patience with me। जो तम ये तो इगो बीती बोर्ड इट इज नॉट वर्किंग सर। टू शूज की बात है, अब ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट खत्म हो गया है। तो शूज 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 की जब मैं बात करता हूं, शूज की जो मैं बात करता हूं बच्चों, तो इसी तरह अगर मैं कहूंगा काफ, मैंने शू की बात की, फिर काफ की बात की, तो काल्व्स और काव्स। इसी तरह हाफ हाल्व्स, है ना, नाइफ नाइव्स, इट इज सिंगुलर, दिस वन इज प्लूरल। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सिंगुलर नाउन नंबर्स में जो है सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि मैं कहूंगा हाफ हाल्व्स, काफ काल्व्स, नाइफ नाइव्स, वाइफ वाइव्स। यहां पर दो चार एग्जांपल देता हूं मैं, वाइफ वाइव्स है, गॉड गॉड्स, गॉड गॉड्स, मैन मैन, है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि मैंने यहां पर दी है सिंगुलर और प्लूरल सेंस में। तो हम कभी परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं इवन व्हाट इज द प्लूरल ऑफ many words, so you should ensure that other examples of this singular and plural are, let us suppose मैं कहूंगा बेंच बेंचेस, बेंच बेंचेस, है ना, पेन पेन्स, हैन हैन्स,
मैन मैन, वुमेन वुमेन। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है लड़कों को, बच्चों को कभी कभार। सब जब लर्नर्स यहाँ पर वुमेन वुमेन है, मैन मैन, है ना। काफ काल्व्स, हाफ हाल्व्स, नाइफ नाइव्स, शू शूज, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। दीज आर द पिलर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू नाउन नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर, और दीज आर कॉल्ड एज नाउन नंबर्स, नाउन नंबर्स, तादाद के लिहाज से। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों पिलर सेंस में। तो फिलहाल चौथे स्टेप पर ये दो नए से स्टार्ट करते हैं। नाउन नंबर तो हो गया आपका अकॉर्डिंग टू नंबर। अब अकॉर्डिंग टू जेंडर भी हमारे पास नाउन के काइंड्स है, जिनस के लिहाज से। अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर होता है जिनस। जहां हम जिनस की बात करते हैं तो इसमें हम मस्कुलाइन और फेमिनाइन, मस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, इसको हम तज़कीर तानीस भी कहते हैं उर्दू में, तज़कीर व तानीस, या मुज़क्कर और मुहन्नस, मुज़क्कर और मुहन्नस, मुज़क्कर और मुहन्नस। लेट अस discuss about this masculine gender, feminine gender on in the next topic, inshallah. Hopefully, let us take a rest for a while, inshallah.